पाकिस्तान में बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाकयात आपके सामने हैं। अफगानिस्तान के रास्ते दहशतगर्द आकर अफवाज पर हमले करते हैं। इंडिया जो है किस हद तक इसमें मुलव्वस हो सकता है, क्योंकि उसके लिए बहुत आसान है पाकिस्तान को डिस्टर्ब करना, थोड़ा सा माली और अस्करी वसाइल देकर। अब तकरीबन 26 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है जो अफगानिस्तान के साथ लगता है, और वहां पर इंडिया चूंकि इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहां पे सड़कें बना रहा है, प्रेसिडेंशियल पैलेसेस बना रहा है, उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना रहा है। तो ऐसा लगता है कि ये वो सूरत हाल है जो कि इवन सदर हामिद करजई और सदर अशरफ गनी के ज़माने में भी नहीं थी। कुछ मूवमेंट देखी गई है। मूवमेंट है जी ये टैंक्स की, जो कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जो सरहद है उसके ऊपर ये इंक्रीज्ड मूवमेंट है दूसरी साइड से। कल से अफगानिस्तान घुस गया है पाकिस्तान में। इतने सारे चेक पोस्ट इनके जाके अब तालिबान ने तोड़े हैं, मारे हैं, उनको टारगेट किया है। एक भी जो है वो आर्मी का बंदा उसमें नहीं दिखा। ये एयर स्ट्राइक का यूज कर रहे हैं, लेकिन जब तालिबान इनके सरहदों पे घुस गए तो कोई भी पाकिस्तानी फौजी वहां पे नहीं मिल रहा। हालात कभी इतने खराब नहीं थे। বন্ধুরা, আজকের এই আপডেটটি শুনে আপনাদের দিল তো গার্ডেন গার্ডেন হয়ে যাবে, কিন্তু এখানে সবথেকে বড় চিন্তা হবে বাংলাদেশিদের। কেননা আপনারা জানেন বাংলাদেশিরা কখনো তুর্কিকে আব্বু বানায়, কখনো পাকিস্তানি, তো কখনো আবার আফগানের তালিবানিদের। হ্যাঁ বন্ধুরা, যখনই ইসলামিক বিশ্বের নাম আসে তখনই সেরা সবাইকে আব্বু বানাতে পিছপা হয় না, কিন্তু যখনই দুই ইসলামিক দেশের মধ্যে ঝামেলা শুরু হয় তখন কিন্তু এদের সব থেকে বড় কনফিউশনে পড়ে যায় যে কাকে ছাড়বে আর কাকে সাপোর্ট করবে। যাই হোক, আসি মেন টপিকে। বন্ধুরা, আপনারা তো জেনে গেছেন যে আজ থেকে 2 দিন আগে পাকিস্তান রিটেলিয়েশন হিসাবে আফগানিস্তানের ঘরের ভেতর মানে তালিবানের উপর এয়ার স্ট্রাইক করে। যে এয়ার স্ট্রাইকে তালিবান জানিয়েছিল যে 8 জন যাদের মারা যায়। তারপরে পরে তালিবানের মুখপাত্র বলেছিল যে আমরা এই রিটেলিয়েশন এমন ভাবে দেব পাকিস্তান মনে রাখবে। ঠিক সেটা বলার পরে থেকে তালিবানের তরফ থেকে জোর সোরে কারবাই করা শুরু হয়ে গেছে। আপনাদের আগে জানিয়ে দিই যে একটা সময় ছিল, হ্যাঁ বন্ধুরা, একটা সময় বলতে সেই সময়ের কথা বলছি যে সময় তালিবান ক্ষমতায় আসছিল। সেই সময় সব থেকে বড় আনন্দ পেয়েছিল বাংলাদেশিরা আর পাকিস্তানিরা। যাই হোক, এখনো কিন্তু ইসরায়েল আর জঙ্গি হামাসের মধ্যে যুদ্ধ চলমান। তো এটাকে নিয়ে বাংলাদেশ আর পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে আলোচনা হয়েছে যে এখনো জঙ্গি হামাস ইসরায়েলের সাথে যুদ্ধ লড়ছে, যেখানে ইসরায়েলের কাছে সমস্ত কিছু আছে, নেভি আছে, এয়ারফোর্স আছে, সমস্ত কিছু আছে। তারপরেও কিন্তু এখনো পর্যন্ত জঙ্গি হামাসরা তাদের সাথে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এবার ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা এখানে দেখুন, আজকের দিনে তালিবানের কাছে কিন্তু পাকিস্তানের তুলনায় যদি ভালোভাবে বিচার করেন মিলিটারি কম্পারিজন, তো সেখানে কিন্তু তালিবানের কাছে কোনো সংসাধনই নেই। না এয়ারফোর্স আছে, না নেভি আছে, না অন্য এয়ার ক্যাপাবিলিটি। যেটাই হোক, তারপরেও কিন্তু তালিবানেরা বড় বড় সুপার পাওয়ারের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে ইতিহাস থেকে আজকের দিনও পর্যন্ত। তবে এখানে এখন চিন্তা এটাই যে হামাসের মতন যদি তারাও পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে পাকিস্তানিদের অবস্থা কি হবে। মুখের কথা মুখেই আছে, নিয়ে নিন। এদের কারবাই এমন ভাবে শুরু হয়ে গেছে, পাকিস্তানিদের মিডিয়াতে বড় সড় রকমের চিন্তা দেখা যাচ্ছে। খবর বেরিয়ে আসছে এটাই, আফগান লাগোয়া সীমানাগুলোতে তালিবানের তরফ থেকে এমন ভাবে অ্যাকশন করা হচ্ছে যে পাকিস্তানি সেনা তাদের চেকপোস্ট গুলোকে ছেড়ে পালিয়ে এসেছে। এমনকি কিছু কিছু জায়গায় তালিবানকে চেকপোস্টকে ওড়াতে পর্যন্ত হয়নি, তারা অটোমেটিক অর্থাৎ পাকিস্তানি সেনা আগে থেকে সেই সমস্ত জায়গাগুলোকে ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে। তালিবানি সেনার কাছে হাইটেক রাইফেল, আরপিজি, এমনকি অ্যাডভান্স লেভেলের গান, এছাড়া আগেকার দিনে যে সমস্ত ট্যাঙ্কগুলো অল ওভার বলতে গেলে তারা আমেরিকার ফেলে যাওয়া অ্যাডভান্স অস্ত্রের আগে যে সমস্ত পুরনো অস্ত্র ছিল সব কিছুকে নিয়ে তারা পাকিস্তানের উপর ভারীভাবে আক্রমণ করছে। খবর তো এটাও বেরিয়ে এসেছে যে ছবিটিকে আপনারা স্ক্রিনে দেখছেন যে পাকিস্তানের অনেক সেনা তালিবানের হাতে বন্দী হয়ে গেছে। হে আল্লাহ, এটা কি করছো তুমি? দুই আল্লাহ আল্লাহ লড়াই করে দিচ্ছ। এবার পাকিস্তানিদের সব থেকে চিন্তা কোন আব্বুকে আব্বু বলবে আর কোন আব্বুকে ছেড়ে দেবে, কোন আব্বুকে ভালো বলবে আর কোন আব্বুকে খারাপ বলবে। কেননা যখন এই তালিবানি ক্ষমতা এসেছিল তখন সব থেকে বেশি খুশি হয়েছিল এই বাংলাদেশিরা, আর এখন এদের চিন্তা যে তালিবানিকে সমর্থন দেবে না পাকিস্তানিদের। বন্ধুরা, এদের সম্পর্কে যে সমস্ত মিডিয়াগুলোতে তারা কথাবার্তা চলছে সেটা আপনারা নিজেরাই শুনে নিন। भारत के जो सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने, उन्होंने भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया बड़ी वाज़े। भारत के सीडीएस ने जो स्टेटमेंट दी उसने यही कहा कि पाकिस्तान के मुआशी मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, इकनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ हैं, इकनॉमिक चैलेंजेस हैं, लेकिन इस सब में हम जो पाकिस्तान की मिलिट्री है, पाकिस्तान की जो फ़ौज है, उसके थ्रेट को इग्नोर नहीं कर सकते और हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। वो हमारे लिए कल भी एक ख़तरा था पाकिस्तान, आज भी ख़तरा है और आइंदा आने वाले दिनों में भी वो ख़तरा रहेगा और पाकिस्तान की मिलिट्री माइट जो है उसे एक्नॉलेज किया।
अब ये इसे हम तारीफ के तौर पर भी ले सकते हैं कि हमारी मिलिट्री माइट की भारतीय जो CDS है वो तारीफ कर रहे हैं, बट ये उसके कंसर्न्स हैं। और जब इस तरह का आपका जो दुश्मन मुल्क होता है जिससे आपके इख्तलाफात चल रहे होते हैं, जब वो इस तरह के कंसर्न्स का इजहार करे तो उसका मतलब है कि वो कुछ प्लान कर रहा है। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ने यह भी दावा किया कि अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान की चेक पोस्टों को भी निशाना बनाया, यानी जवाबी कार्रवाई की। अब इसी के नतीजे में खरलाची और ग़ुलाम ख़ान जो कि जनूबी और शिमाली वज़ीरिस्तान के बॉर्डर पोस्ट हैं वो भी फौरी तौर पे बंद कर दिए गए, क्योंकि वहाँ भी फायरिंग का तबादला हुआ था। बॉर्डर पर खड़ा हमारा जो फौजी जवान है वो इस वक्त आपकी और मेरी दुआओं का मुंतज़र है, आपके और मेरे मॉरल सपोर्ट का मुंतज़र है। वो दुश्मन के निशाने पर है। अफगानिस्तान बॉर्डर पर इस वक्त हालात जो हैं वो कशीदा हैं और इवन मज़ीद कशीदा जो हैं वो भी हो सकते हैं। जो फुटेज है वो बता रही है, और जो फुटेज आई है वो भी यही बता रही है कि जो वहाँ की हुकूमत है वो टैंक्स जो हैं वो पाकिस्तान की सरहद के करीब जो है वो ला रहे हैं। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि ये जो टैंक्स हैं इनकी साख देख के लग रहा है कि ये रशियन एरा जो सोवियत दौर था उस दौर के ये टैंक्स हैं जो कि वहाँ पर इनके कब्ज़े में हैं, और वो ये टैंक्स पाकिस्तान की सरहद पर ला रहे हैं। और एक और ख़बर भी आई है, RTE उर्दू जो है वो इसे रिपोर्ट कर रहा है कि तालिबान ड्यूरेंट लाइन पर कमक भेज रहे हैं जहाँ पाकिस्तान के साथ उनकी झड़पें हो रही हैं। अब ये झड़पें जो हैं इनके हवाले से तो कोई इतनी बड़ी कन्फर्मेशन अभी तक नहीं आई, लेकिन ये चीज़ है कि वहाँ पर ताज़ा दस्ते या फिर वो अपनी जो इन्फोर्समेंट है वो बढ़ा रहे हैं। ऑल्दो इसके अंदर हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, हमने किसी मुल्क के साथ नहीं लड़ना, हम वहाँ की आवाम की इज़्ज़त करते हैं। अब मोहसिन नकवी साहब नए वज़ीर दाखिला ने एक और कार्ड फेंका है, और वो ये है कि 30 अप्रैल के बाद कोई 8,80,000 के करीब अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स पाकिस्तान में मुकीम हैं, उन्हें भी अफ़गानिस्तान वापस भेजने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। क्यों और इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ज़ाहिर है नफ़रतें बढ़ेंगी, गुस्सा बढ़ेगा, और पाकिस्तान के हवाले से जो नफ़रत अंगेज़ जज्बात हैं उनमें यकीनन मज़ीद इजाफ़ा होगा। अब इस तमाम का बराह रास्त असर फिर दोनों तरफ से जो ट्रेड है, बायलैटरल या जो ट्रांजिट ट्रेड है, उस पर असर होगा, क्योंकि इससे कोई हज़ारों ख़ानदानों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। उसमें डेली वेज वर्कर भी हैं, मज़दूर जो हैं, उसमें ट्रकर्स भी हैं, ट्रॉलीज़ वाले भी हैं, होटल, रेस्टोरेंट और बहुत सारे ऐसे कारोबार हैं जो कि ट्रांजिट ट्रेड के साथ वाबस्ता हैं। जब कारोबार बंद होता है, तोरखाम या चमन या ग़ुलाम ख़ान, इसका मतलब है कि जो उजरतों पे काम करने वाले मज़दूर हैं, जो वहाँ की ट्रकर्स हैं, इन सब का नुकसान है। फिर जो कारोबारी हज़रात है जिनका माल ट्रकों में कंटेनर्स में पड़ा होता है, उनको भी ज़ाहिर है नुकसान होता है अगर उसमें अशय खुराक हैं, ऐसी अशय खुराक जो जल्द ख़राब हो सकती हैं। अब इसका नतीजा ज़ाहिर है मज़ीद नफ़रत की सूरत में और मज़ीद कशीदगी की सूरत में बरामद होगा। तो मुझे मालूम नहीं है कौन से अफलातून हैं जो बार बार इस नौयत के मशवरे हुकूमत को देते हैं। पिछले दिनों से हमारा एक मौक़िफ़ चल रहा है, हमारी रिपोर्टिंग चल रही है कि खबरें हैं कि पाकिस्तान की ये जो नई रेजीम है, ये जो लाए हैं, ये एक सेटअप ऐसा चाह रहे हैं, कॉन्फ्रंटेशन ऐसी चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ एक छोटी लिमिटेड जंग हो। और इनके जो अमेरिकन दोस्त हैं वो भी कहने लग गए हैं। कल डोनाल्ड लू भी ये कहेगा, इस पे हमने रिपोर्ट किया है पिछले व्लॉग में। आज डोनाल्ड ब्लोम जो अमेरिकन एम्बेसडर है, उन्होंने भी ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, ये जो काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन का लफ्ज है कि दहशतगर्दी के साथ एक साथ हम लड़ाई जो है जारी रखेंगे, ये फिर से री इंट्रोड्यूस होने लग गया है। क्या कोई लिमिटेड वॉर होगी अफगानिस्तान के साथ? सवाल बनता है। मगर एक चीज क्लियर है, एक चीज वाज़ेह है कि जरदारी फौज और अमेरिकन प्रेजेंस अब एक साथ कोऑपरेट, इनकी कोऑपरेशन जो है वो शुरू हो गई है। हमारा जो दुश्मन है वो भी इवॉल्व कर गया है, एक नई सिचुएशन पाकिस्तान को कन्फ्रंट करती है, और ये जो दुश्मन है ये एक नया डेंजरस दुश्मन बन चुका है। ये ज्यादा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये ज्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। इस वक्त इसी पिछले साल में 49 ग्रुप्स, 49 ग्रुप्स ने मर्जर किया है, इत्तेहाद किया है। इनके पास ज्यादा फायर पावर आ गई है, इनके पास जदीद असलहा आ गया है, इनके पास नाइट विजन गियर आ गया है, इनके पास लॉन्ग रेंज वेपन्स आ गए हैं
वेरी इंपॉर्टेंटली इनके पास डिजिटल टेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি দেখে আর শুনে কি বুঝলেন? পাকিস্তানের মিডিয়া এই মুহূর্তে কতটা চিন্তিত, আর চিন্তা হবে নাই বা কেন? এই মুহূর্তে তারা সব থেকে বেশি চিন্তা ভারতকে নিয়েও করছে, যে ভারত এই জল ঘোলাতে মাছ না ধরে নাই। কেননা দেখুন, আমরা তো জানি পাকিস্তানের অলরেডি কোমর ভেঙে গেছে। এমতো অবস্থায় ভারত প্রকাশ্যে না হলেও যদি ব্যাকফুটেও যদি তালিবানের সাথে খেলে, তো পাকিস্তানে তো নেয়ার বদলে দিতে হবে। অলরেডি পাকিস্তান এটাই ভাবছে। আমি চাই যে আমিও এটা চাই যে ভারত সরকার সরাসরি না, পিছন থেকে তালিদের সাপোর্ট করুন। তার সাথে সাথে আমরা এটাও জানি যে তালিরা কখনো এরা ভালো মানুষ ছিল না, আর না হবে। ইতিহাস সাক্ষী আছে, ইসলাম গাদ্দার ছিল, আছে আর থাকবে। তো বন্ধুরা, পুরো ভিডিওটি দেখে আপনাদের কি মতামত সেটি অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।